the hottest topic when it comes to weight loss is Ozempic and Mounjaro. Yes, I took Mounjaro. I'm not recommending jack shit. What happens with Ozempic is कि वो आपके ब्रेन को ऐसे फंक्शन करता है कि आपको भूख कम लगे, फिर वो जो आपके पेट में जो ऑलरेडी खाना होता है whatever you're eating, वो इंटेस्टाइन तक पहुंचाने में उसको और डिले कर देता है so that आपको एकदम भूख ना लगे. So that's why a lot of people with Ozempic are also doing OMAD, 1 meal a day. Who shouldn't take these Ozempic or Mounjaro at all? I would say no one should take. Ghrelin और leptin जो हमारा हंगर एंड सैटिस्फाइटी हार्मोन होता है वो भी आप उसको मैसअप कर रहे हो बिकॉज उसको सिग्नल्स नहीं मिल रहे कब रुकना है कब नहीं रुकना. How much protein one can take in a day? If you don't have any like workout, nothing, then I would recommend 0.8 grams of per kg body weight. And if you are slightly active, like if you are an athlete also, then go up to 1.2 grams per kg of body weight. अब ये ट्रेंड आ गया that everybody is like no, don't eat roti so much. रात में चावल तो बिल्कुल मत खाओ. Rice is very easy to digest. आप उसको रात को खाओगे ना, you're going to feel so much lighter the next day. What is the most unhealthy thing people do in the name of weight loss? So Nandini, let's begin with the hottest topic. When it comes to weight loss is Ozempic and Mounjaro. Yeah. Everybody, you see so many celebrities and even regular people are taking it. So we want to understand, क्या ये सच में काम कर रहा है और is it even safe to consume it? What's your take on that? So Ozempic definitely work तो कर रहा है but then again उसके side effects भी emerge हो रहे हैं जैसे कि pancreas में dysfunction, pancreatic cancer, then also people are losing their vision. तो there are definitely side effects और ये भी है कि you know once you leave Ozempic अगर आपने उसके साथ अपना lifestyle नहीं सही करा है तो वो you'll go back to square one. मतलब वो कुछ फायदे का नहीं अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं सही करोगे. सो yes, of course people want a shorter route, but then again that shorter route is always going to be risky for you. So with what happens with Ozempic is कि वो आपके ब्रेन को ऐसे फंक्शन करता है कि आपको भूख कम लगे, फिर वो जो आपके पेट में जो ऑलरेडी खाना होता है whatever you're eating, वो इंटेस्टाइन तक पहुंचाने में उसको और डिले कर देता है so that आपको एकदम भूख ना लगे. So that's why a lot of people with Ozempic are also doing OMAD, 1 meal a day. तो वो कर तो लेते हैं बट उसके बाद जैसे ही Ozempic आपका वो ख़त्म होएगा उसके बाद आपका वेट गेन वापस हो जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है Ozempic हो, Wegovy हो, Mounjaro हो, कुछ भी हो, उसके साथ यू हैव टू फिक्स योर लाइफस्टाइल. आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको अपना स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, आपको स्लीप सही करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स यू हैव टू ईट राइट, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. एंड पर्सनली वर्क कर भी रहा है तो मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट किसी अपने क्लाइंट को नहीं सजेस्ट करूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक आउटर थिंग है जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो जिसका अभी तक कोई इतना साइंटिफिक स्टडीज भी नहीं प्रूव हुआ है. जस्ट बिकॉज यू वांट टू लुक अ सर्टेन वे आप उसको मतलब यू जस्ट कांट बी गोइंग फॉर रॉन्ग थिंग्स. There are so many versions right now, Ozempic and Mounjaro, and there's Wegovy. So tell me the difference between Ozempic, Mounjaro and Wegovy, or are these the similar? See, it's mostly the similar thing. Mounjaro is majorly related to like insulin and blood sugar levels, like for diabetic. And of course, like, but उनका जो function होता है body के अंदर वो GLP-1 receptor पे काम करता है, which is in your brain. तो हाइपोथैलेमस पे वो जाके वर्क करता है जिसकी वजह से आपको कम भूख लगती है. तो मतलब अगर आप तीनों से कुछ भी ले रहे हो वो उसका फंक्शन वही होगा. बट हाँ, Ozempic इज मोर रिलेटेड टू वेट लॉस, बाकी दो थोड़ा डायबिटीज रिलेटेड है. When I was doing my research and I've read some articles where people are preferring Mounjaro more than Ozempic. See, Mounjaro has been in the market for some time now. Ozempic is very new. It's also like a doctor thing. What the doctor is recommending, depending on what. Because अगर किसी का weight gain हो रखा है तो देर आर 80% चांसेस कि उसको डायबिटीज़ भी होएगी. और अगर लोग वो क्यों ही लेंगे जब तक आपका इतना स्टबन फैट है जिसको टाइम लगेगा. यू नो द वंस हु आर एक्चुअली ओबीस, तो उनमें ऑलरेडी हैव डायबिटीज़ या ऐसे लाइक प्री डायबिटीज़. तो उसके लिए डॉक्टर वॉट एवर रिकमेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट, दैट मैटर्स मोर. So if you see someone
can you recognize if he or she has taken Ozempic? नॉट रियली, बट अभी इतना ट्रेंडिंग है ना, स्पेशली सेलेब्स के बीच में, तो हर कोई उनको बोलता है कि हाँ पक्का लिया होगा, बिकॉज क्विक वेट लॉस हो रहा है. अब हाँ मे बी हो सकता है कि सेलेब में मतलब दे माइट बी टेकिंग इट बिकॉज उनका प्रोफेशन ही वही है, दे हैव टू लुक अट्रैक्टिव. तो अब अगर सपोज इफ यू आर टेकिंग एंड आई एम मीटिंग यू, देन आई कांट, Okay. बिकॉज आई डोंट नो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, Right. ऐसे. Yeah. बट ऐसे एकदम देख के यू कांट. वो चीजें अलग होती है कि हाँ एकदम वैसे भी कोई वेट लॉस करता है तो लोग बोलते हैं अरे बड़े कमजोर हो गए हो टाइस. तो वो तो फिर मतलब यू विल सी योर डिफरेंस, बट यू कांट से कि हाँ ये Ozempic है कि क्या है. Because people nowadays, there is a thing called Ozempic face. That and- chiseled. Yeah, chiseled, like structured face. So I was, just curious कि क्या न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर पहचान सकते हैं देख करके. नो नॉट रियली, बिकॉज हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. हर कोई अपना वो जो वेट लॉस करेगा वो कहीं, इट्स नॉट लाइक कि पूरी बॉडी में से वेट चला जाता है. हर किसी का अपना एक स्टबन फैट एरिया होता है. सो दैट्स नॉट लाइक पॉसिबल कि हाँ ठीक है इसने Ozempic लिया होगा, ऐसे यू कैन टेल. Tell me, who shouldn't take these Ozempic or Mounjaro at all? I would say no one should take. Yeah, even if you are very overweight. I mean, ऐसा नहीं है कि आप वो वेट लॉस नहीं कर सकते. यू जस्ट नीड दैट डेडिकेशन एंड मोटिवेशन. आपके अंदर से आना चाहिए. बिकॉज आप खुद सोचो, लाइक जिसको ऑलरेडी, अगर आप अच्छी डाइट रखोगे, इफ यू आर स्लीपिंग वेल, देयर इज नो साइड इफेक्ट. इट्स ओनली गिविंग यू गुड हैबिट, इट्स गोइंग टू गिव यू गुड हेल्थ. देयर इज नो शॉर्टकट टू हेल्थ. आपने सालों लगाए हैं वो उस वेट पे पहुंचने के लिए. अब यू कांट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट मेरा वेट कम हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो आई वुड से कि कोई मत लो. इट्स ऑफ कोर्स अ हार्डर रूट, but then it's going to be worth it because आप उसमें उस जर्नी में there's so much you're going to learn. अब Ozempic में आपको पता है हाँ वो कर रहा है, मैं अब उसके बाद कुछ भी करूँ because there are so many people. चलो celebs तो have a proper team उनके पास होता है, डॉक्टर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, वेट ट्रेनिंग के लिए मतलब एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट भी है, सब कुछ है उनके पास. they have a team, but if a normal person is taking it, अब वो तो लगवा लेगा Ozempic इंजेक्शन लगा लेगा रोज, बट उसका अगर डाइट वगैरह कुछ नहीं सही तो वो तो वापस आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी व्हेन आई वाज इन लंदन में ऐसे ओवर द काउंटर Ozempic सेल हो रहा है. Oh. Every other person is taking Ozempic. So someone that I know very closely, she was also getting Ozempic and I could not tell. Like you asked me abhi, I could not tell कि हाँ ठीक है उस वजह से like she has lost weight. But then she herself told me and she's like अब तो मुझे भूख नहीं लगती, मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा वेट कम हो रहा है, मेरा इतने kgs कम हो गया है. And I was like okay, आगे जाके पता लगेगा अभी. I mean आप खाना नहीं खा रहे हो उससे क्या होगा? True. आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी तो बढ़ेंगी. Very ऑलरेडी हम लोगों का डाइट इतना खराब है, ऊपर से फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हो. Doesn't make sense. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके सपोर्ट से और भी बेहतर गेस्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट.